بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹیٹ بینک آفیسرز ٹریننگ اسکیم کے لیے اپلائی کرنے والے تمام امیدواران یہ ویڈیو شروع سے آخر تک کمپلیٹ دیکھیں۔ اس میں ٹیسٹ کے سلیبس، کوٹا سسٹم، ویکینسیز کی تعداد، سیمپل پیپر اور ایم سی کیو ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنے کے لیے کچھ ٹرکس بتائے جائیں گے۔ الحمدللہ آپ کو سباٹس کے حوالے سے اس سے زیادہ کمپریہنسو گائیڈنس کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش، یہ جو ویڈیو آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں گے اس چند منٹ کی ویڈیو کے پیچھے کریئٹر کی کئی دنوں کی محنت شامل ہے، تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہو تو لائک اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو کینڈیڈیٹ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ ویکینسیز کی تعداد کتنی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ بینک تقریباً ہر سال 2 لیولز پہ انڈکشن کرتا ہے۔ او جی 1 جسے ینگ پروفیشنل انڈکشن پروگرام کا نام دیا گیا ہے، اور او جی 2 جسے سبارٹس یعنی اسٹیٹ بینک آفیسرز ٹریننگ اسکیم کا نام دیا گیا ہے، جس کے لیے آپ نے ابھی اپلائی کیا ہے۔ پاسٹ ٹرینڈز کو دیکھیں تو سبارٹس ویکینسیز کی تعداد 25 سے 40 کے درمیان رہتی ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا کوئی کوٹا سسٹم اپلائی ہوتا ہے؟ تو جواب ہے یس۔ فیڈرل گورنمنٹ جابز کے لیے طے شدہ کوٹا اس پر اپلائی ہوتا ہے۔ ابھی آپ سکرین پر ملاحظہ فرمائیں اس کوٹا سسٹم کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن۔ اس وقت سکرین پر آپ کے لیے نوٹیفیکیشن چل رہا ہے۔ میرٹ 7.5%، پنجاب کا کوٹا 50%، سندھ کا ٹوٹل کوٹا 19%، جس کو فردر اربن اور رورل سندھ کے درمیان ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اربن سندھ کے لیے 40% جبکہ رورل سندھ کے لیے 60% آف دیٹ 19%۔ خیبر پختونخوا کا کوٹا 11.5% ہے، بلوچستان 6%، اور جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس آف خیبر پختونخوا جنہیں پہلے فاٹا کا نام دیا گیا تھا ان کے لیے 3% الگ سے کوٹا ہے۔ گلگت بلتستان کا کوٹا 1% جبکہ آزاد کشمیر کا کوٹا 2% ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پریسٹیجیس جاب کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اپلائی کرنے والوں میں سے شارٹ لسٹنگ کس طرح ہوگی؟ تو اس کے لیے ایک ایم سی کیو بیسڈ ٹیسٹ لیا جائے گا جو 100 نمبر کا ہوگا، اور آپ کے پاس 2 گھنٹے ہو گئے اسے سالو کرنے کے لیے، یعنی 120 منٹس ٹو سالو دس ایم سی کیو بیسڈ ٹیسٹ۔ ڈیئر اسپورٹس ایسپیرنٹس، اب پیش ہے آپ کے لیے لرن ود طاہر کی طرف سے ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنے کے لیے ٹرک۔ یو ہیو ٹو اٹیمپٹ آل دا کوسچنس۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب آپ سیکوینس کو فالو نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ آپ نے ایم سی کیو 1 سے سٹارٹ کرنا ہے اور ایم سی کیو 100 تک ترتیب سے جانا ہے تو میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں آپ پھنس جائیں گے۔ آپ ایم سی کیو 1 سے سٹارٹ کریں، جو کوسچن آتا ہے اس کا جواب دیتے چلے جائیں، اور جس کے بارے میں آپ کو سوچنے کے لیے وقت درکار ہے وہ سکپ کرتے جائیں۔ ایک دفعہ آپ گو تھرو ہو گئے اور فرض کیا آپ نے 25 سے 30 کوسچنز کر لی تو آپ میں اعتماد آ جائے گا۔ اب دوسری بار پھر سے ان کوسچن سے سٹارٹ کریں جن پر آپ کو تھوڑا بہت غور کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو آپ کے لیے زیادہ مشکل والے کوسچنز ہیں وہ تیسری اور آخری اٹیمپٹ میں رکھیں۔ ان کوسچنز کے لیے بھی آگے چل کر میں آپ کے ساتھ ایک ٹرک شیئر کروں گا۔ اب جان لیتے ہیں ٹیسٹ کی کمپوزیشن کے بارے میں۔ یہ ٹیسٹ 3 سیکشنز پر مشتمل ہوگا۔ نمبر 1 انگلش سیکشن جس کے 40 مارکس ہوں گے۔ نمبر 2 انالیٹیکل اینڈ کوانٹیٹیو اسکلز اینڈ جنرل انٹیلیجنس، 30 مارکس کا یہ سیکشن ہوگا۔ اور نمبر 3 پاکستان اکانومی، کرنٹ افیئرز اینڈ جنرل نالج، یہ بھی 30 نمبر پر مشتمل سیکشن ہوگا۔ اگر اب تک کی ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ پاسنگ کرائٹیریا کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی فکس پاسنگ مارکس یا میرٹ نہیں ہوتا اس کے لیے۔ کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف ٹیسٹ ایز اے ہول پاس کرنا ہوگا بلکہ تینوں سیکشنز الگ الگ سے پاس کرنا بھی لازم ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں جو میرے دوست وقاص یونس صاحب
جو स्पॉट्स बैच 21 में क्वालिफाई करने के बाद इस वक्त स्टेट बैंक में जॉब कर रहे हैं, उनके मुताबिक स्पॉट्स बैच 24 में एक कैंडिडेट के 83 मार्क्स थे, मगर उसका एक सेक्शन फेल था जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो कहने का मकसद ये कि हर एक सेक्शन के लिए लाजमी तैयारी करनी है। जितना हाईली रिवॉर्डिंग ये जॉब है, कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। मेरिट बैच टू बैच वेरी करता है, और इस ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं और उनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस क्या रहती है। अगर टेस्ट मुश्किल होगा तो मेरिट लो रहने के चांसेस होंगे, और अगर टेस्ट आसान होगा तो मेरिट हाई चला जाएगा। तो जनरल ट्रेंड की बात करें तो मेरिट जो ईच सेक्शन का है वो 60 टू 75%, और जो एज अ होल मेरिट है पासिंग क्राइटेरिया वो 80% के लगभग आता है। ऐसा भी हुआ है कि YPIP का एक टेस्ट बहुत मुश्किल था, तो उसमें इंतहाई कम कैंडिडेट्स पास हुए, तो उसमें जो क्राइटेरिया था मेरिट था वो 50% था, एज अ होल 50% और सेक्शन 45%। तो ये टेस्ट पे डिपेंड करता है और कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक और आपको चीज़ समझा दूँ कि कट ऑफ किस तरह लगाया जाता है मेरिट के लिए। तो फ़र्ज़ करते हैं कि 40 वैकेंसीज़ हैं, तो उसके लिए स्टेट बैंक ये डिसाइड करता है कि हमें एक वैकेंसी के अगेंस्ट 5 बंदों को इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कॉल करना है। तो वो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 200 कैंडिडेट्स को कॉल कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि चूंकि ये कोटा सिस्टम इस पे अप्लाई होता है, तो जो मेरिट होता है वो प्रोविंशियल कोटा और उस पे भी डिपेंड करता है, और मे भी वैरी करता हो। पंजाब के लिए कुछ और मेरिट आए उनके कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, सिंध के कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कुछ और मेरिट आए, और इसी तरह जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं उनके लिए अलग अलग से मेरिट हो। लर्न विद ताहिर की तरफ से अब आपके लिए ट्रिक नंबर 2। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसमें करना आपने ये है कि एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करना है। आपको अगर एक किसी MCQ का जवाब नहीं आता, आप बहुत गौर करने के बाद भी एग्जैक्ट जवाब तक नहीं पहुंच पाए, तो आप उन ऑप्शंस पे गौर कीजिए जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी जो आप समझ सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन तो इसका जवाब हो ही नहीं सकता। तो फर्ज किया एक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD। तो इस टेक्निक की मदद से अगर आप 2 ऑप्शंस को स्किप करने के काबिल हो जाते हैं, फर्ज किया C और D आपने स्किप कर दिए कि ये तो इसके जवाब हो नहीं सकते, तो अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बाकी रह गए, A और B। अब आप A और B में तुक्का लगाते हैं तो 50% चांसेस हैं कि आपका जवाब दुरुस्त हो जाए। डियर एस्पेरेंट्स, पहले भी बता चुका हूँ कि इसके कोई फिक्स्ड पासिंग मार्क्स नहीं है। ये एक मुकाबले का इम्तहान है। आपने जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है उतना ही आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो पासिंग परसेंटेज है वेरी करती है बैच टू बैच। ये वो बातें हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ज़रूरी थी दोबारा बता रहा हूँ। और आगे चल के अब हम देखेंगे इंडिविजुअल हर सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले इंग्लिश के सेक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें कंप्रीहेंशन पैराग्राफ, रिलेशनशिप बिल्डिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सेंटेंस करेक्शन जैसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे सैम्पल पेपर में शेयर करूंगा, वहां से आपको इसका आइडिया भी हो जाएगा। तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो तवील हो रही है, आप लोग उगता रहे होंगे। अगरचे मेरी कोशिश रही है कि थ्रू आउट दिस वीडियो टू द पॉइंट ही बात की जाए। अब बढ़ते हैं MCQ बेस्ड टेस्ट के दूसरे सेक्शन की तरफ, यानी कि एनालिटिकल क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन की तरफ। अलजबरा से मुतल्लिक सवाल होंगे इसमें, स्टेटमेंट क्वेश्चंस होंगे, कंप्लीट द सीरीज वाले क्वेश्चंस होंगे, एज प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होंगे,
एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और सपोजिशन क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट का तीसरा जो पोर्शन है वो है पाकिस्तान इकोनॉमी, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सेक्शन। तो इसमें पाकिस्तान इकोनॉमी के रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स के रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स शेयर करूंगा जो आपके लिए इस सेक्शन की तैयारी के लिए इंतहाई यूजफुल होंगे। खास करके पाक एमसीक्यूज के नाम से एक वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। करंट अफेयर्स वहां से आपके हाथ से तैयार हो जाएंगे। और एक दो वीडियोस मेरे अपने चैनल पे मौजूद हैं जो आपको जनरल नॉलेज के लिए हेल्प करेंगी। और जनरल नॉलेज, स्टैटिक और वेरिएबल जनरल नॉलेज, ये दोनों ज़रूरी होते हैं। दोनों की आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। और करंट अफेयर्स को लेकर अगर बात करें तो ये स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होते हैं, फ़र्ज़ किया अभी पीएसएल चल रहा है तो इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इनके वर्ल्ड कप्स जो गुज़श्ता हुए कहाँ पर हुए और नेक्स्ट कहाँ पर होने, किस वेन्यू पर होने, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता रहूं और ये वीडियोस बनाता रहूं ताकि आपकी तैयारी हो सके, तो कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा इस चीज़ का। तो अब मैं आपके साथ सैम्पल पेपर शेयर करता हूं। जी एस्पिरेंट्स, अब आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएंगे सैम्पल पेपर बैच 24 का। एनटीएस बैच 25 के लिए जिसके लिए अभी आपने अप्लाई किया है, इसके लिए भी सैम्पल पेपर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा, तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा चांसेस यही है कि यही वाला पैटर्न होगा क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से यही पैटर्न चला आ रहा है। तो वन बाय वन आप इनको देख लें। आप वीडियो पास करके अटेम्प्ट भी कर सकते हैं इनको। मैं ज़रा तेज़ी से स्क्रॉल करूँगा क्योंकि वीडियो खासी तवील हो चुकी है। तो आप अपनी आसानी के लिए इनको एक दफ़ा ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। पेपर के एंड पर आंसर की भी मौजूद है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और ये है कि आपने अच्छे से तैयारी करनी है इस टेस्ट की। हाईली रिवॉर्डिंग जॉब है तो उस लिहाज से कंपटीशन भी उतना हाई होता है। ये अब आप देख रहे हैं सामने एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन। तो ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है जिसमें आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं जो आपको ओवरऑल टेस्ट पास करने के लिए खासा हेल्पफुल हो सकता है। आपने ईच सेक्शन पास करनी है, लेकिन आपने एज अ होल टेस्ट भी पास करना है। पास से मुराद यानी आपने क्वालिफाई करना है, मेरिट पे आना है। तो इसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। एनालिटिकल रीजनिंग जो है ये वाला क्वेश्चन, ये इंतहाई आसान क्वेश्चन होता है अगर आपने अटेम्प्ट किया हो, तैयारी की हो, इसकी प्रैक्टिस की हो। इसकी यूट्यूब भरी पड़ी है आसान मेथड्स। इस हवाले से एनालिटिकल रीजनिंग के हवाले से आप सर्च करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन यूट्यूब पे, तो आपको आसान मेथड्स मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप तैयारी कीजिए। पाकिस्तान इकॉनमी, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चंस भी आप वन बाय वन देख लें। वीडियो पॉज करके आप इनको अटेम्प्ट करें क्योंकि आंसर की लास्ट पर शेयर की गई है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे उनके साथ जो इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। याद रखिए कि आपकी जॉब कोई और नहीं ले सकता और इल्म शेयर करने से आपका इल्म भी बढ़ेगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और मज़ीद वीडियोस आपकी तैयारी के हवाले से अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।